Hello students, this is our first lecture of thermodynamics, JEE and NEET. Yes, so let's go ahead with the definition, scope and limitations of thermodynamics. So here we are going to study in detail about the thermodynamics. So thermodynamics deals with the study of transformations of energy from one form to another form, such as light energy transferred to mechanical energy, light energy transferred to thermal energy, and light energy transferred to chemical energy. Similarly, electrical energy transferred to mechanical energy, electrical energy transferred to thermal energy, and chemical energy transferred to thermal or mechanical energy. Okay, students. So next is thermodynamics. Thermo means heat, dynamics means movement. Thermodynamics is the branch of science that deals with the different forms of energy, the quantitative relation between them, and the energy changes that occur in a physical and chemical processes. Scope. It explains about how a chemical reaction proceeds, means in presence of heat, by absorbing heat, by evolution of heat, physical and chemical changes during a reaction, whether a chemical reaction is practically possible or not, that also will get idea from the thermodynamics. Sometimes what happens, while thinking we assume that this is very easy reaction, this will occur in a minutes or an hour, but when we perform it, okay, experimentally, then we will get idea that this is quite tough and takes a longer time, or it is not possible to complete. How laws of physical chemistry are derived, that is means first law, zeroth law, second and the third law of thermodynamics also we are going to discuss in this chapter. Next is limitation. It is applicable only for macroscopic properties. So माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए. बहुत ही स्मॉल हो तो माइक्रो बोलेंगे, थोड़ी उससे साइज बड़ी हो तो मैक्रो बोलेंगे. इट ओनली कंसिडर्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. मीन्स जैसे कि आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, सो इनिशियल स्टेट इज आइस, final state is water. Okay, it believes on that too only. But how or what process we have involved for the conversion of ice to water, so thermodynamics does not gives you the idea regarding that. It does not tell us about the rate, means speed, कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी, मैकेनिज्म कितने स्टेप्स होंगे रिएक्शन के, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जैसे कि 2 स्टेप रिएक्शन हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें थर्मोडाइनेमिक में से नहीं मिल रही. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. Thermodynamics deals with different forms of energy, quantitative relation between the different forms of energy, energy changes in a physical and chemical reaction, or all of this. So answer is all of this. Now, limitations of thermodynamics. Limitations. Applicable for macroscopic properties also we have discussed here. Yes, that is the correct. Now, deals with initial and final state of the system. Yes, that is also correct. Not concerned with speed. Yes, I already told you that in chemical kinetics we will get idea about the speed, means कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. So here also our answer is all of this. Now, तो इसमें से तो मैं आपको आंसर बोल रही हूँ, बाकी आपको खुद से आंसर करना है एक बार सुनने के बाद. Next topic is our thermodynamic terms. So thermodynamic terms are system, surroundings, universe and a boundary.
First, we are going to discuss about the system, a small part of the universe chosen for a thermodynamic study at a given instant is called a system. Such as in a laboratory scale, if I select a test tube, if I take any content in the test tube और आई एम परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट विद दिस, सच एज मैं यहाँ नीचे बर्नर लेके उसको गर्म कर रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ. सो ये बाउंड्री है उसकी, ये डेफिनेट बाउंड्री से, ये यूनिवर्स से ये सेपरेट हो रहा है. सो दिस इज़ माई सिस्टम कि जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जिसके अंदर से कुछ ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ. ठीक है. नाउ सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम. ठीक है. ये जैसे कि टेस्ट, ये हमारी सिस्टम है. ठीक है. ये पूरा यूनिवर्स है जो ब्लैक कलर की बॉर्डर से दिया हुआ है. इतना पार्ट जो सिस्टम से आपका ऑक्यूपाई हो रखा है, तो बाकी का पूरा पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं सराउंडिंग्स. सो इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल विजिबल बाउंड्रीज. ठीक है. यस. देखिए ये मैं बोल रही हूँ, तो इसके अलावा ये जो टेस्ट ट्यूब के अलावा मुझे जो भी कुछ दिख रहा है उसको मैं यूनिवर्स कंसिडर करूँगी. तो यूनिवर्स की कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है. यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज सेड टू बी द यूनिवर्स. बाउंड्री, द रियल इमेजिनरी surface or line that separates a system from its boundary, सॉरी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. जैसे कि ये ऑरेंज कलर की है जिसे मैं बाउंड्री बोल सकती हूँ. एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉटल ले रखी है, तो सिस्टम बन गई मेरी बॉटल. सब्सटेंस जिसके अंदर भरा हुआ है ये हो गया बॉटल के आसपास वाला पार्ट, सराउंडिंग थिंग्स आउटसाइड द बॉटल. और बाउंड्री, दैट इज़ ये ग्लास की जो बॉटल है वो मेरी हो जाएगी बाउंड्री. ठीक है. ये हो जाएगी बाउंड्री. ठीक है. ये बाउंड्री है. क्लियर? ओके. सो देयर आर सम क्वेश्चंस. प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क. The surface which separates system and the surroundings. I guess you know the answer clearly. Please attempt the answer. These also I am giving you for homework. Just इसके अंदर PDF एडिट होता है जोडो से, जोडो करके ऐप के अंदर, तो उसके अंदर ही मार्क कर दीजिए, उसमें से ही पढ़िए. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम. ओके. तो आप आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द सिस्टम. टाइप्स ऑफ द सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग है. आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट. देखिए, देयर आर 3 टाइप्स: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो तो वो हो जाएगी ओपन सिस्टम. दोनों का एक्सचेंज नहीं हो तो वो हो जाएगी क्लोज्ड सिस्टम. दोनों में से एक का आउटसाइड जाना या फिर इनसाइड आना पॉसिबल हो, या तो फिर मैटर या फिर एनर्जी, तो उसको हम बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम. तो यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ वी क्लोज द टेस्ट ट्यूब को मैं क्लोज कर देती हूँ तो वो मेरी हो जाएगी क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम. बोलिए स्टूडेंट्स, आपके ऊपर डिपेंड है वो, तो वो आपको आंसर देना है. कैन इट एक्सचेंज मैटर? एक बार मैं टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर देती हूँ तो मैटर एक्सचेंज कर सकता है? नहीं कर सकता. यस. मगर मैं टेस्ट ट्यूब को नीचे से गर्म कर सकती हूँ. ठीक है. तो वो हीट अंदर ले जा सकता है, तो दैट इज़ माई आइसोलेटेड सिस्टम. मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाता मगर हीट एक्सचेंज होती है. कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? यस. इसके बारे में पूछा गया है. यस, इट विल एक्सचेंज एनर्जी. On the basis of boundary, if we put the entire assembly in a thermos में रखे, thermos is if we use a good quality thermos, then up to 4-5 hours it is a closed system. But 4-5 hours के बाद उसके अंदर रही चीज़ धीरे धीरे ठंडी या फिर गर्म होने लगेगी तो वो आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगी. ठीक है.
तो कैन इट एक्सचेंज मैटर, कैन इट एक्सचेंज हीट, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। मैटर नहीं, एनर्जी आएगी। एक क्वेश्चन एनर्जी होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका मैटर। तो 4-5 आवर तक नहीं तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा थर्मोस, नहीं तो वो हीट एक्सचेंज करेगा। ठीक है। नाउ अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम if we consider a substance in a test tube. Now, so ये हमने डिस्कस कर लिया है। यस, क्लोज सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। A system which can exchange energy but not matter from surrounding is closed system। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करता है मगर मैटर को नहीं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब की हमने बात कर ली कि नीचे से मैं अगर बर्नर से गर्म करूँ तो हीट अंदर जा सकती है, मगर अंदर का मैटर या फिर बाहर की कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज टेस्ट ट्यूब इज क्लोज, तो दैट इज द क्लोज सिस्टम। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज neither मैटर नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड। जैसे मैंने बात की 4-5 आवर तक जो आपका थर्मोस फ्लास्क है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, मगर आफ्टर 4-5 आवर इट विल बिकम अ क्लोज सिस्टम। Types of the system that we have discussed, the another types are homogeneous system and a heterogeneous system. A system consisting of more than one phase, phase means एक solid हो, एक liquid हो, दो liquids हो, उसको more than one phase बोलते हैं, और phases throughout is called heterogeneous. A single phase, सिर्फ solids भरा हो, सिर्फ liquid भरा हो। ठीक है, so this is students heterogeneous, this is homogeneous, this is also homogeneous. So here are the questions, students. 1, 2, 5. Now next point. The state of the system. The state of a thermodynamic system is described by its measurable or microscopic properties that are state function and a path function, might you have discussed in the board lecture. The property of the system whose value depends only on initial and a final states of the system and do not depend on the path if followed is called as state function. So these are the what state functions you have to remember. Internal energy, we are going to discuss in detail about that. Enthalpy, entropy, Gibbs energy, temperature and a pressure and volume. नाउ पाथ फंक्शन सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता हो, ये देखिए आप, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मीन्स मैंने आपको बोला वो सॉलिड स्टेट में से लिक्विड हुआ तो इनिशियली आइस इज इन सॉलिड स्टेट, फाइनली इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, मगर वो करने के लिए मैकेनिज्म क्या फॉलो किया, प्रोसेस मेथड क्या अप्लाई की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये क्या है कि मैकेनिज्म मेथड पे डिपेंड करता है, उसमें दो ही आएंगे आपके, वर्क एंड हीट। सो स्टूडेंट्स इसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आते ही हैं, जिससे आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन और नॉट अ व्हाट स्टेट फंक्शन। देखिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन स्टूडेंट्स, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट ए एंड बी, नन ऑफ दिस, सो आंसर इज व्हाट सी। देखिए बीच में कोई कोई हम सॉल्व करते जाएंगे, कोई कोई आपको होमवर्क में करते जाना है। Internal energy and enthalpy are definitely, we have studied that are state functions. ठीक है, स्टेट फंक्शंस नॉट वेरिएबल्स। प्लीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस दे